Today's video is RAPD marker. So firstly we have to know about the RAPD full form. So it is random amplified polymorphic DNA or random amplification of polymorphic DNA. So in this, why we are saying random? Because we are taking the random sample of DNA sequence. As in the earlier marker, in RFLP we have taken a known sequence of DNA, but in RAPD we are taking a random sample. So that's why we are saying a random amplification, because we are doing a random amplification of DNA sequences, right? And polymorphic DNA, because the DNA which we are taking is polymorphic. They are showing polymorphism, different DNA samples we are taking. Okay, so the definition of RAPD is any DNA sequence that is amplified using short oligodeoxynucleotide primer or arbitrary nucleotide sequence, that is amplifier, and polymerase chain reaction procedure. Two things we have to notice. One thing, that in RAPD we are considering the short deoxynucleotide primers. Mean in the previous RFLP procedure marker, we are using a long sequence of DNA segment. We have to consider a long DNA segment, but in RAPD we have to consider only short primers. We need a short primer. And the second thing we have to notice, and the difference is, this is a PCR procedure. RFLP is a hybridization procedure. We are hybridizing it with the probes, and in this we don't have to use any of the probe, right? We only have to consider PCR procedure in this, and we have to use a short primers and amplify the DNA samples, right? RAPD is also known as APPCR, DAF, MAAP. These all are the modified versions of RAPD. Okay, these are like arbitrarily primed PCR is we have to consider primer, and we use that primer segment in the DNA sample and use it by using PCR, right? DAF, DNA amplification fingerprinting, this is also a modified version of RAPD, because RAPD is a dominant marker and it is unable to just quantify the parenting and genome sequencing method. So for that only we have to modify RAPD, and these are the modified version. Mean procedure also, you can say, map multiple arbitrary amplicon profiling. And one more is the SCAR. SCAR is also a modified version of RAPD. Okay, it is a dominant marker system, and previously RFLP we have studied what it is. Co-dominant marker system. Co-dominancy mean both of the parent is showing their dominancy, and if a marker is a dominant, then that particular marker is like one of the parent is showing dominancy, other one is recessive. So I think it will be not convenient for the parenting procedure. Okay, if we want to just go for parenting claim or anything, we have discussed earlier that RFLP is used for the parenting claiming and all the things, but it's not convenient because it's showing a dominant marker system, and these modified version are for that only, to just minimize this drawback of marker system. So these can be used in parenting and genome sequencing procedure also. Okay, now what is the principle behind the RAPD? Principle is they are produced by PCR using genomic DNA and arbitrary primers,
We use PCR, polymerase chain reaction, in this by using a genomic DNA and primers, right? Tag polymerase is used to amplify DNA segment between closely spaced sequence, that is less than 2 kb, and complementary to a short random oligomers, typically a 10 mers, right? And RAPD polymorphism result from change in the primer binding site in the DNA sequence. Polymorphism, RAPD polymorphism, how it can be happen? By the change in the primer binding site in the DNA sequence. If there is a primer binding site and there is a change in the DNA sequence, then we can say that RAPD polymorphism is happening, right? So in variety A, there are two varieties in this diagram, variety A and variety B. In variety A, there are 4 primers. By red color, I am just using a neon color. 4 primers you can see, right? And 4 primer binding sites, resulting in 2 RAPD products. Okay, 2 RAPD products you can see. Variety B lacks one of the binding sites, resulting in only one RAPD marker being produced, because there are only 3 here, 2 and here only 1, so it cannot bind. So here there is no RAPD marker, and here only the one marker is being produced. So we can see that we need binding sites also. If there is lack of binding site in any of the primer site, so there will be a no amplification and no resultant we will get. So the points we have to notice is the primer point in the same direction, so no amplification would happen. If the primer is on the same direction, so there will be a no amplification. अगर primers का direction same side होता है तो वहाँ पे amplification नहीं होगा. Okay, the first point of primer direction. The second one is, if the primers are too far apart, there will no amplification. अगर प्राइमर्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से तो भी एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा. थर्डली, अगर प्राइमर्स राइट डिस्टेंस में होंगे एक दूसरे से, लाइक वन इज़ इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड अनदर वन इज़ राइट डायरेक्शन, सो द फ्रेगमेंट वेव is going to be amplified. You can say the forward and reverse amplifiers or primers we need. So the third point we have to notice is, we need reverse and forward primers in RAPD. Okay, now what is the advantages of RAPD? Moving on to advantages and disadvantages, you have to clearly known about RAPD. Okay, RAPD समझ में आ गया होगा आपको क्या है इसमें. ये एक डोमिनेंट मार्कर सिस्टम है. RAPD का मतलब है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, जिसमें हम रैंडम DNA सैम्पल्स कंसिडर करते हैं, उसमें प्राइमर्स लगाते हैं, रैंडम होते हैं वो भी, और वो जाके फिर अटैच हो जाते हैं, और फिर हमें जो सैम्पल्स मिलता है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स का मिलता है. जैसे हमने RFLP में किया था कि हर इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वैरी करता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, और इसमें क्योंकि हमने एट रैंडम लिया है, वी डोंट नो द सीक्वेंस. जैसे कि RFLP में वी आर नोन अबाउट द DNA सीक्वेंस वी आर टेकिंग. सो इन दैट वी नो एंड वी आर यूजिंग द प्राइमर ऑफ आर इंटरेस्ट, बिकॉज हमें पता था. लेकिन इसमें एम्प्लीफाइड जो हम कर रहे हैं DNA सैम्पल, वी डोंट नो द सीक्वेंसेस, तो हम रैंडम एक प्राइमर जो जनरेट करेंगे एम्प्लीफिकेशन के लिए, वो हम रैंडम लेंगे कि जो जाके वहाँ जुड़ जाए. कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जाके ना जुड़े और हमें कोई भी सैम्पल नहीं मिले, जो कि हमने अभी देखा था. मतलब हम बाइंडिंग साइट्स नहीं अटैच होती हैं और हमें कोई भी सैम्पल नहीं मिलता है. तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि रैंडम सैम्पल है ये. ठीक है, हमें सीक्वेंस पता नहीं है, और इसमें अगर सीक्वेंस जाके जुड़ जाते हैं तो हमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, वो फ्रेगमेंट्स को हम PCR में रन करवाते हैं जेल में, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे इसकी पोजीशन है. और क्योंकि ये डोमिनेंट मार्कर है तो इसमें से एक ही पेरेंट का जो है वो हमें देखने को मिलता है जेल में रन जो होते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, वो एक का ही मेजॉरिटी में रहता है.
और इसी को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू जस्ट emphasize on different modified version of RAPD. So only we will discuss about the SCAR, the remaining APPCR, MAP, everything you will have to see in detail. तो आप पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लो कि क्या होते हैं RAPD के. RAPD नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA. इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज, क्योंकि हमें RFLP में बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए था DNA का. तो ये वो कम हो रहा है कि RAPD में हमें थोड़े अमाउंट में भी रिजल्ट मिल रहा है. इट इन्वॉल्व्स नॉन रेडियो एक्टिव. ऐसे इसमें जो रेडियो एक्टिव जो यूज़ होता था RFLP में, यहाँ पे रेडियो एक्टिव कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है. ये भी एक एडवांटेज है. इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक प्रोब लाइब्रेरीज. इसमें कोई भी प्रोब यूज़ नहीं हो रहा है. जैसे कि हम RFLP में हमने क्या किया था, रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज़ किए थे, उसको हाइब्रिडाइज करवाया था नाइट्रोसेलुलोज पेपर जो हमने कंसिडर किया था उससे. तो वो भी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है प्रोब्स की. एंड फोर्थ वन इज़ द इट वाज क्विक एंड एफिशिएंट स्क्रीनिंग फॉर DNA सीक्वेंस बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म एट मैनी लोकाई. मतलब ये बहुत ही फास्ट है. जैसे कि RFLP बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था. ये बहुत ही जल्दी 3 से 4 घंटे में परफॉर्म हो जाता है और इसका रिज़ल्ट दिख जाता है. तो ये एडवांटेजेस हैं RAPD के. डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ इनहेरिटेड एज डोमिनेंट ट्रेड्स. ओके, इनहेरिट होता है डोमिनेंट ट्रेड से ही. मतलब अगर डोमिनेंसी होगी ट्रेड में तभी ये शो होगा, इसमें बाइंड होगा और फिर फ्रेगमेंट्स दिखेंगे. देयर इज़ अ बैंड ड्यू टू रिलेटिवली शॉर्ट प्राइमर. शॉर्ट प्राइमर की वजह से बैंड्स जो हैं वो दिखते हैं. शॉर्ट प्राइमर्स यूज़ होते हैं तो. और प्रोडक्शन जो है नॉन पेरेंटल बैंड का इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ नोन पेडिग्री वॉरेंट्स, इट्स यूज विद एक्सट्रीम केयर. मीन इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो कम है. इट हैज़ लो मतलब अगर हम पर्टिकुलर सैम्पल को फिर से यूज़ करना चाहें, फिर से रिप्रोड्यूस करवाना चाहें, तो वो मतलब बहुत ही केयर के साथ हमें करना पड़ेगा. वो हो नहीं पाएगा. और वैसे ही अगर हम कंपेयर करें RFLP में तो उसकी हाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है. वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर सैम्पल इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो. राइट. इट इज़ सेंसिटिव टू चेंज इन PCR कंडीशन. और अगर हमें कोई चेंज करना है PCR की कंडीशन में तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल प्रोसीजर है. मतलब वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है अगर हमें कोई चीज़ चेंज करना है PCR में. Right, so these are advantages and disadvantages. What are the application of RAPD? How we can amplify नहीं, application हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं. तो फर्स्टली we can use RAPD in genetic maps and F1 identification. ओके, वेराइटल लाइन आइडेंटिफिकेशन. ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं. बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस में यूज़ करते हैं. डाइवर्सिटी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं. MAS होता है मार्कर असिस्टेंट सेलेक्शन में यूज़ करते हैं. ये आपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा था. सीड टेस्टिंग में. ये सारे मोस्टली टर्म्स प्लांट ब्रीडिंग में आप पढ़ चुके हो. ये सारी टेस्टिंग जो होती है वो हम करते हैं RAPD से. ठीक है. मैप बेस्ड जीन क्लोनिंग. अब ये जो है ये स्कैर का डायग्राम मैंने शो करने के लिए कि इसका क्या प्रोसीजर है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं वो देख लो आप. RAPD जेल हमने लिया. ठीक है. उसमें से जो पॉलीमॉर्फिक बैंड है उसको हमने लिया, उसमें से एक सैम्पल, और उसका क्लोन तैयार किया. ठीक है. वी मेड अ क्लोन किया पॉलीमॉर्फिक बैंड. फिर उसको उसके सीक्वेंस को क्या किया हमने, प्राइमर्स के साथ ऐड किया और उसको एम्पलीफाई किया. स्पेसिफिकली द बैंड ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंड हमने लिया है द बैंड ऑफ इंटरेस्ट, उसको प्राइमर्स के साथ जोड़ के एम्पलीफाई किया. ठीक है. एम्पलीफिकेशन के बाद वी गेट अ न्यू प्राइमर्स, और जो रिज़ल्ट था वो क्लियरली हम देख सकते थे बैंड्स का, और ये इंटरप्रेट कर सकते थे कि दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक बैंड. राइट. तो ये चीज़ हमने देखा है कि इसमें देखो आप RAPD जेल में सब एक जैसा आ रहा है. द डिफरेंस बिटवीन RAPD एंड स्कैर प्रोसीजर और जो मॉडिफाइड प्रोसीजर्स हैं RAPD के, उसमें यही है कि जब हम सैम्पल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड RAPD जेल हमने लिया, तो हमें जब
देखना होता है. सो वी कैनॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजाइगोट्स. दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक. और अगर हम स्कैर कंसिडर करते हैं, स्कैर या कोई भी मॉडिफाइड देते हैं, तो ही दैट प्रोसीजर that procedure can differentiate between homozygotes and heterozygotes. So that is the main part which is different between RAPD and SCAR, right? तो ये मेन डिफरेंस है कि होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजाइगोट्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है RAPD, और ये जो मॉडिफाइड प्रोसीजर्स हैं इसके, वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे तीनों बैंड्स दिख रहे थे RAPD जेल में, 1 2 3. और जब हमने उसके एक बैंड को, पॉलीमॉर्फिक बैंड को लिया, उसको क्लोन किया और उस पर्टिकुलर बैंड को हमने प्राइमर्स के साथ जोड़ के एम्पलीफाई किया, तो एम्पलीफाई के बाद जो हमें मिला वो देखा हमने कि 1 और 3 जगह पे जाके फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं. तो वहाँ पे जाके प्राइमर्स बाइंड हुए हैं. ठीक है, वहाँ पे जाके प्राइमर्स बाइंड हुए हैं. इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक साइट में एम्पलीफिकेशन हुआ है. ठीक है, तो ये स्कैर का प्रोसीजर है. और RAPD में मॉडिफाइड जो हमने किया वो हमने देखा इसमें. तो ओवर एंड ऑल RAPD आप समझ गए होगी कि क्या है डिफरेंस, आपको समझ में आ गया होगा. ये PCR बेस्ड मेथड है, RFLP हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है. इसमें हम शॉर्ट प्राइमर्स यूज़ करते हैं, रैंडम DNA सैम्पल्स यूज़ करते हैं. कोई प्रोब की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सीक्वेंस हमें नोन नहीं होता है. ओनली वी नीड अ PCR में हम रन कराते हैं. PCR एक डिफरेंट प्रोसीजर है. PCR आपने पढ़ा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डिफरेंट एक सबसे पहले तो DNA सैम्पल चाहिए होता है हमें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और प्राइमर्स चाहिए होते हैं, एम्पलीफायर्स चाहिए होते हैं, और जेल चाहिए होता है जो कि हम लेते हैं. और ये सारे मिक्सचर हम डालते हैं PCR मशीन में और फिर वो रन होता है. ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स फिर देख पाते हैं. तो ये ओवरऑल RAPD के बारे में था. कल हम बात करेंगे AFLP और SSR की. ओके, थैंक यू सो मच.